بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا حکومتی نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھرنوں اور احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی تیار۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جلسے، جلوسوں، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ پابندی دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر لگائی گئی۔ پابندی کا اطلاق کل سے 28 جولائی تک ہوگا۔ مہنگی بجلی اور بھاری بھرکم بلوں کے خلاف دھرنا۔ جماعت اسلامی نے تاریخی پرامن احتجاج کی تیاری تیز کر دی۔ لاہور سے کارکنان اور رہنماؤں کی روانگی جاری۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کہتے ہیں اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو خود ذمہ دار ہوگی۔ اپنی گھریلو اشیاء فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دیگر اشیاء میں بھی جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں، لیکن سردست جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بجلی کے بلوں میں اور اس کے ٹیرف میں جو مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کی قیمت پاکستانی قوم دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو 13-14 قسم کے ناجائز ٹیکس عائد کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کل لاہور میں احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل بھی احتجاج میں شرکت کرے گی۔ لاہور کے تمام صوبائی حلقوں میں احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین اسمبلی احتجاج کی قیادت کریں گے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ لاہور سمیت ملک بھر میں تمام گڈز اڈوں پر بکنگ بند۔ شہر میں اکبری گیٹ اور راوی روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا لیے گئے۔ صدر لاہور نبیل محمود کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ آل پاکستان سیمنٹ ایسوسی ایشنز کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال مؤخر۔ حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ چیئرمین آل پاکستان سیمنٹ ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن چودھری ساجد علی نے کہا ہڑتال کی وجہ سے مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اسی لیے ہڑتال مؤخر کی۔ آل پنجاب ٹیچرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ ٹیچرز کے نمائندہ گورنر پنجاب اور فائنانس سیکرٹری سے مل کر لائحہ عمل طے کریں گے۔ ٹیچرز کی بڑی تعداد نے نون لیگ ماڈل ٹاؤن دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرے میں خواتین اساتذہ کی بھی کثیر تعداد شریک ہوئے۔ ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے، جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے، اس میں آپ ناکام رہیں گے۔ ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے، یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے، اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں۔ سوشیو اکنامک رجسٹری منصوبے کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے کی نقاب کشائی کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنا گھر اسکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن کروانے والے اسکیم کے حقدار بنیں گے۔ ہر ضلع سے جرائم کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ خواتین ڈرائیورز اور رائڈرز کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام۔ ویمن سیفٹی ایپ کو کریم کے ساتھ منسلک کرنے پر اتفاق۔ رائڈرز سروس کی بہتری کے لیے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے سروسز پرو رائڈر سیکٹر کی بہتری کے لیے پلان طرف کر لیا۔ مریم نواز سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے وفد کی بھی ملاقات۔ ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز کے آغاز پر بات چیت کی گئی۔ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ویژن اور اپنی سوچ کے مطابق ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جو کہ 28 فروری کو گروپ بنا۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل گروپ بنا جس کے اندر پنجاب حکومت کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، جس کے اندر PITB اربن یونٹ، سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کو شامل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे पास इस दफ़ा जो अपोजिशन आई है वो जितनी इमेच्योर और जितनी इस अपोजिशन ने जिस तरह इस असेंबली के डेकोरम को, आदाब को, पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो भी अपोजिशन का रुकन है वो खड़ा होकर बात करता रहा, मगर उसके बावजूद भी मलिक अहमद साहब ने इंतहाई तदब्बुर बुर्दबारी के साथ हमारे स्पीकर साहब उनको लेके चले। अवामी फलाह के मंसूबे अपोजिशन को हजम नहीं हो रहे। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजा रहमान की लफ्जी गोलाबारी। कहा अपोजिशन को पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। PTI दौरे हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की बात नहीं सुनी जाती थी। से मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है, सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया। वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। रिवायत है पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन है। उस्मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर हाई कोर्ट का उस्मा बुखारी को मामले पर FIR से रुजू करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मखसूस टोला सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सदर नून लीग कल्चरल विंग पंजाब ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने अनिला रियाज उर्फ नीली परी को गिरफ्तार कर लिया। अनिला रियाज और नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमा ने ताहिर अंजुम के कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकियां दी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी काउंसल जनरल की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक चाइना इक्तसादी राहदारी मनसूबा फ़ायदेमंद है। राहदारी मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहा IPPs सरमायाकारी से ज्यादा कमा चुके हैं। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाकुन है। IPPs की बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस की वसूली अफसोसनाक है। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा CCPA की दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो हमें रिलीफ देना था, तो रिलीफ में 200-300 यूनिट वो फ्री होने थे। 200-300 यूनिट फ्री की तो बात बड़ी दूर की है, आपने 80 रुपए का यूनिट कर दिया। हमारे हालात ये हैं, ताजर जो लोग हैं और हमारे जो वर्कर वगैरह उनके हालात ये हैं। तो कई जगह पे तो अब सुनने को मिल रहा है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, माँ बाप बेटों की हो रही है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। और सुना है कि कई पावर प्लांट जो है जो 0 यूनिट पैदावार जो है उनको करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों पर नजरसानी करे। सदर बानो बाजार अनारकली सलमान खान की हुकूमत से अपील। कहा बिजली के बिलों से ताजर और आम तबका शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा भी पूरा नहीं किया। ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। FIA की लेस्को अफसरान को सख्त वार्निंग। डायरेक्टर लाहौर सरफराज खान की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। लेस्को कस्टमर सर्विस डायरेक्टर और 8 सर्कल के SEs को तलब कर लिया। कहा कि ओवर बिलिंग पर फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने विफाक को झंडी दिखा दी। बजट में कैश सरप्लस न रखा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान ने 755 अरब रुपए की गुंजाइश रखी। सिंध की वजह से कैश सरप्लस में 462 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर कंप्लेन हेल्पलाइन की लागत 1.5 अरब से भी बढ़ा दी गई।
हेल्प लाइन का 1 साल का खर्च 59,72,54,000 और दूसरे साल 45,69,37,000 खर्च होंगे। तीसरे साल 50,13,00,000 रुपए खर्च होंगे। मसनूई महंगाई करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर में 3,114 मकामात की चेकिंग। 14 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात। डीसी राफे हैदर के मुताबिक 127 दुकानदारों को 6 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। महकमे सेहत में काबिल अफसरान की कमी या हुक्काम की बदनीयती। पी होटा 2 साल से मुस्तकिल डीजी से महरूम। प्रोफेसर शहजाद को 7वीं बार तौसी दे दी गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जैसे अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। मियो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ। महकमा हेल्थ ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी वाकई की तहकीकात करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी हस्पताल मरीजों की जिंदगियों से खेलने लगे। मियो अस्पताल में जायदुल मियाद इंजेक्शन के मुतासरीन सामने आना शुरू। बिलालगंज का रिहायशी नुमान मुबैना तौर पर इंजेक्शन के बायस टांगों से मासूर हो गया। मुतासरा नुमान का कहना है कि मैं तंदुरुस्त था, गलत इंजेक्शन लगने से मासूर हुआ। जनरल अस्पताल के मुआलिजीन का बड़ा कारनामा। सरगोदा के 5 साल के बच्चे की जान बचा ली। पेशावराना मुहारत का मुजाहिरा। एंडोस्कोपी प्रोसीजर से बच्चे के मेदे से चाबी निकाल ली गई। 5 साला अयान खान को नई जिंदगी मिलने पर वालिदैन का इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत का करोड़ों रुपए का मंसूबा खाक में मिल गया। 11 अजला में विमेन क्राइसिस सेंटर वीरान हो गए। 6 माह से विमेन क्राइसिस सेंटर की कोई चेयरपर्सन तैनात न हो सकी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 10 तहसीलों की मंजूरी दे दी। न्याज बेग, शाहदरा, जल्लो, निश्तर और सदर तहसील बनाई जाएगी। 10 नई तहसीलों के क़याम से हुकूमत को 12 करोड़ 33 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के। पहली बार जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइव स्टॉक का अहम इकदाम। 9211 सिस्टम में नया तरीकाकार मुरतब करने का फैसला। रिकॉर्ड समेत मवेशी मालिकान को जानवरों की मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने सिस्टम बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। हिंदू शादियों की रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायजा लिया। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा ने तजावीज़ पेश की। रमेश सिंह ने कहा कि शादियों की रजिस्ट्रेशन के अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत का कोर्ट फीस में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज करना। अदालत का चीफ सेक्रेटरी समेत फ्री कैन को नोटिस जारी। 8 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए बुला लिया गया। जस्टिस आबद अजीज शेख ने दरखास्त पर समाअत की। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कंवर को हैंगिंग ट्रैप करने का वाकया। अदाकारा मथीरा खलीलुर रहमान कंवर के हक में बोल पड़ी। कहा कि ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह, मगर खलीलुर रहमान कंवर के साथ ज्यादती हुई। मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत उजाड़ दी। कान्हा में बेटे ने घरेलू झगड़े पर वालिदा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल्ला ने रजिया बीबी को बांधकर पहले तशद्दुद किया, फिर छुरी के वार से कत्ल किया। कोट लखपत पुलिस ने मुल्जिम को कसूर से गिरफ्तार कर लिया। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। मोटरसाइकिल चोरों ने डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस को निशाना बना लिया। दफ्तर की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल चोरी। हेड कांस्टेबल उस्मान सईद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि संगीन इमराज का शिकार किसी एहलकार और अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
शहरियों का ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। रवां बरस 53,22,000 से ज़ायद शहरी ऑनलाइन सहूलत से मुस्तफ़ीद हुए। घर बैठे 50,43,000 शहरियों ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस हासिल किए। बागात के शहर में मौसम के बदलते रंग, चिलचिलाती धूप के बायस हब्स की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। और मुल्क की तारीख में पहली बार स्कूल हॉकी लीग और आज़ादी कप टूर्नामेंट का आगाज। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने स्कूल हॉकी लीग का मकसद कौमी खेल का फ़रोग़ है। पहली मरतबा सरकारी तालीमी इदारे कौमी खेलों की बहाली के लिए नर्सरी बन रहे हैं।